Good morning, class 7th English medium student. So now today we are here for our new lesson of SST, Social Science, and our new lesson in Social Science is lesson 17, the Governor and State Council of Ministers. The Governor and State Council of Ministers. As you know that in last lesson of our SST, we just learned about Legislative Assembly of the state, okay, Vidhan Sabha, Vidhan Parishad, उनके बारे में हमने पढ़ा है, got it? And the process of the legislative members election, the qualification of MLAs, okay, the organs of government, ये सारी चीजें जो हैं ये हमने हमारी लास्ट क्लास में डिस्कस की in our last chapter, okay? And now today we start our new chapter, chapter 17, the Governor and State Council of Ministers. Okay, now first thing, who is the governor? So in a simple word, governor is the head of the state. Okay, state government में, state में किसी भी राज्य में गवर्नर जो होता है वो उस राज्य का प्रमुख होता है. Governor is the head of the state. The governor is head of the state and the administration of the state functions in the name of the governor. Okay? Governor is the head of the state and the functions of the state is just going through by the name of the governor. जो भी functions होते हैं उस state से related वो governor के नाम के according ही चलाए जाते हैं या चलते हैं. Now come to the appointment of the governor. So what is the process of the appointment of the governor? Governor कैसे appoint किया जाता है? Okay, state government में governor की appointment किस तरह से होती है? ये अब हमको देखना है. So by the president appoints governor. Okay, the governor is appointed by the president on the recommendation of the union ministers. क्या होता है? प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करता है बट द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ओके, जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की यूनियन होती है उनके रिकमेंडेशन के आधार पर जो राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं. द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ओके, बट बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. गॉट इट? He is appointed for a term of 5 years. Term of 5 years के लिए गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं. उनकी जो ड्यूरेशन है, वर्किंग ड्यूरेशन है, कार्यकाल है, वो 5 years का होता है. ओके, एंड गवर्नर बट बिफोर 5 years he can removed by the president, okay, or removed by expiring of the date of his term. वो रिमूव किया जा सकता है, प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जा सकता है. ओके, द गवर्नर रिलीव हिमसेल्फ आल्सो ऑफ हिज ड्यूटीज एंड ऑल. वो खुद भी रेजिग्नेशन देकर अपनी ड्यूटीज को खत्म कर सकता है बिफोर हिज टर्म ड्यूरेशन. ओके, एंड द एब्सेंस ऑफ द गवर्नर व्हेन द गवर्नर इज नॉट अवेलेबल इन द स्टेट, सो द चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्टेट, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस जो होता है वो डिस्चार्ज करता है duties governor. That means chief justice of high court discharging the duties in the absence of governor of the state. Governor जो state का है उनके absence में chief justice जो है high court के वो उनके पद को संभालते हैं, उनसे related जितने भी works हैं, laws हैं उनको handle करते हैं. In the absence of the governor, the president can also appoint a temporary governor. In the absence of governor, the chief justice of high court discharges his duties, okay, but the president also appoint a temporary governor. That means कुछ समय के लिए, स्थायी रूप से नहीं, कुछ समय के लिए नए गवर्नर को भी अपॉइंट किया जा सकता है. So this is the appointment process of governor. Governor is appointed by the president through the recommendation of the Union Council of Ministers. Okay, his term or his working term is for 5 years, but he can
बेस पर, और नहीं तो गवर्नर खुद भी रेजिग्नेशन फाइल कर सकते हैं, दे सकते हैं प्रेसिडेंट को अपनी टर्म को पूरा होने के पहले। नाउ व्हेन द गवर्नर इज एब्सेंट फ्रॉम द स्टेट, अगर गवर्नर की एब्सेंस है, गवर्नर नहीं है स्टेट में, तो जो चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट का, वो गवर्नर की सारी ड्यूटीज को फॉलो करता है इन द एब्सेंस ऑफ द गवर्नर। और इसके साथ ही साथ प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ टेम्पररी गवर्नमेंट फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए जो प्रेसिडेंट है वो टेम्पररी गवर्नर को भी अपॉइंट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज जस्ट अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ द governor in our government. Governor is simply known as the state of the hand. He was appointed by the president through the recommendation of the council ministers, union council of ministers. Okay, its term duration is only 5 years and he can be removed by the president before his term, or he can give the resignation to the president before his term. After the absence of governor, the chief justice of high court taking charges of governor and president can also appoint temporary governor. Got it? तो ये हुआ आपका गवर्नर। Now what are the qualification required to become a governor? अब कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है जो रिक्वायर्ड है, जो कि जरूरी है एक स्टेट के, एक राज्य के राज्यपाल बनने के लिए, गवर्नर बनने के लिए। So the main qualification, the first important qualification is he must be a citizen of India. उनका citizen of India, भारत का नागरिक होना जरूरी है। Second है he must have completed the age of 35 years. ठीक है, एज ऑफ 35 years कंप्लीट होने के बाद ही कोई व्यक्ति गवर्नर के पद के लिए अपना नाम दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ही मस्ट नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। उनको किसी भी तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद का सदस्य या असेंबली का सदस्य नहीं होना है। यदि कोई ऐसा मेंबर है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ असेंबली है, सो ही वोंट बी बिकम गवर्नर। He must not hold any post or profit in the state or union government. किसी भी तरह के लाभ से रिलेटेड कोई भी पोस्ट या प्रॉफिट करने वाला नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी ऐसी पोस्ट पर है स्टेट या यूनियन गवर्नमेंट में जिससे कि उन्हें लाभ अर्जित होता है, तो वो गवर्नर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, गवर्नर नहीं बन सकते। सो दीज आर द क्वालिफिकेशन ऑफ आवर गवर्नर। These are the qualification which is required to become a governor. Next is oath taking ceremony. Now what is oath taking ceremony? Oath taking ceremony यानी प्रतिज्ञा ग्रहण समारोह। ठीक है, जबकि जो भी हमारी सरकार के नेता, लीडर्स, वर्कर्स, कार्यकर्ता हैं, एज बीइंग अ चीफ मिनिस्टर, बीइंग अ प्रधानमंत्री, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, all over the members of our government taking oath before they taking charge of their post. सभी जो हमारे सरकारी कर्मचारी, सरकार से रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉयज हैं, they also taking oath before they start their working and all for their post. वो अपनी कार्य के लिए, अपनी पोस्टों के लिए कार्य करने के पहले प्रतिज्ञा ग्रहण करते हैं। So this is known as the oath taking ceremony, प्रतिज्ञा ग्रहण समारोह। Before occupying the post of the governor, a person has to take an oath of faith and allegiance to the Constitution of India. That means जो भी व्यक्ति गवर्नर की पोस्ट को हायर कर रहा है, ले रहा है, उसको उस पोस्ट को ऑक्यूपाई करने के पहले ओथ लेना होता है कि वह भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नियम, कायदे, कानूनों का पालन करेगा, देश की हित के लिए कार्य करेगा। In presence of the Chief Justice of the High Court or in his absence, in the presence of senior most justice of the High Court. So the governor taking oath in the presence of Chief Justice of the High Court or by the Chief Justice is absent, so the senior most justice of the High Court. ठीक है, ये जो oath ceremony है, जो गवर्नर अपनी पोस्ट को ऑक्यूपाई करने के पहले लेते हैं, ये ओथ सेरेमनी, ये प्रतिज्ञा वो या तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के सामने
state and the lok ayukt etc. These are the members which are appointed by the governor of the state, and these appointments are made on the recommendation of the state assembly. और ये सारे जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं ये स्टेट असेंबली जो होती है, राज्यसभा की जो सभा होती है, उसके द्वारा जो भी रिकमेंडेशंस आते हैं उनके अकॉर्डिंग और उनके थ्रू ही किए जाते हैं. नाउ द गवर्नर हैज द पावर टू समन एंड एब्सॉर्ब द स्टेट असेंबली. दैट मींस गवर्नर के अंदर ये पावर है कि वो स्टेट असेंबली को कभी भी स्थगित कर सकता है, स्थापित कर सकता है. ओके, इट इज द पावर ऑफ द गवर्नमेंट दैट ही जस्ट summon and adjourn the state assembly. This is the power of the governor. Now the bill passed by the assembly making become a law only after the assent of the governor. बिल जो असेंबली में पास होते हैं वो तभी पास हो सकते हैं, तभी आगे बढ़ सकते हैं जब गवर्नर उसकी परमिशन दे देते हैं. उसके अलावा when विधानसभा is not in session and law is urgently required, the governor can himself pass some orders. जब विधानसभा सेशन में नहीं होती है और किसी भी ऑर्डर की रिक्वायरमेंट प्रायोरिटी मोड पे होती है तो गवर्नर खुद ऑर्डर्स को पास कर सकते हैं. These orders are called ordinances. ये जो ऑर्डर्स होते हैं इन्हें ऑर्डिनेंसेस कहा जाता है, जो इमरजेंसी में या किसी कार्य को किसी की चीज के लिए शीघ्रता के लिए लिए गए निर्णयों के आधार पर जब किया जाना होता है. दे हैव द इफेक्ट ऑफ लॉ, और ये लॉ पर इफेक्ट डाल सकते हैं, कानून पर भी इसका असर हो सकता है. नाउ इफ द गवर्नर फील्स दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यदि गवर्नर को ये लगता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य की जो सरकार है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नॉर्मली रनिंग नहीं कर रही है, चल नहीं रही है, परफॉर्म नहीं कर रही है, फंक्शन नहीं कर रही है, सो ड्यू टू द मेंबर्स चेंजिंग पार्टी और ड्यू टू एनी अदर रीजन, किसी भी रीजन से, चाहे जब पार्टी के मेंबर्स चेंज हुए हो या कोई और रीजन हो, सो गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू डिस्चार्ज इट्स फंक्शन प्रॉपरली, है ना. जब कोई और रीजन हो, या तो जो लोग हैं मंत्री परिषद के सदस्य हैं उनसे रिलेटेड रीजन हो और उसके थ्रू गवर्नमेंट जो है वो फंक्शन ठीक से ना कर रही हो, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन ना कर रही हो, सो द गवर्नर कैन रिकमेंड द प्रेसिडेंट फॉर द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट. सो इस बेस पर जब कोई ऐसी कंडीशन आती है तो गवर्नर प्रेसिडेंट को बोलकर प्रेसिडेंट रूल को स्टेट में फॉलो करा सकता है. ठीक है, राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है ड्यू टू द कंडीशन व्हेन द वर्कर्स ऑफ द गवर्नमेंट और व्हेन द मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर नॉट डूइंग द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टमैटिकली. ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारा जो टॉपिक था, ये आज हमारा टॉपिक जो है गवर्नर एंड द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है. हमने गवर्नर के बारे में आज सारी बातें की. गवर्नर कौन है, गवर्नर कैसे अपॉइंट होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी कैसे होती है, उनके फंक्शंस और पावर्स क्या क्या हैं.